Sir, Rishika has joined by two devices. That's right. Number is okay, beta. So let us join our hands, close our eyes, and chant Omkaram 3 times. Sai Ram. I welcome you all for today's class. Okay. So first of all, who will today monitor? Tell me. Sir, Yeah. sir, sir, can we make the presentation on 8th chapter? Yes, beta. You can do. Very good. Sir, I have made my presentation. Can I present? Yeah. Right now. Yes, beta. Sir, my Who is name the is Harsh Verma. monitor? Who is going to answer in between whenever I ask a cross question, whether I am visible, whether I am audible, whether my screen is visible or not, like that, all questions. Anybody? Renuka? Shubhra? Okay. Prachi is ready. Okay. All of you can begin. So, Adib. Adib. Okay, Adib, you will talk to me. Good. Adib and Renuka, you will Sir, talk to me whenever I ask you. Right, Shubhra, next day. Right, beta? Okay. Then matter. So, Adib, yes, sir. first of all, we are going for presentations. So, who is going to present first? Raghav Harsh Verma. Tiwari, are you Sir, ready? Harsh Verma. Sir, Harsh Verma. अच्छा ठीक है हर्ष शर्मा स्टार्ट हर्ष Sir, शर्मा कैन can I present? स्टार्ट Present? एंड रेणुका नोट डाउन द नेम बेटा रेणुका Yes, sir. हाँ बेटा है ना बी Sir, रेडी Harsh. आपको मैंने जिम्मेदारी दी है थोड़ी है ना Yes, sir. एंड आई होप यस बेटा चलो स्टार्ट करो हर्ष हाँ प्राची ऑल ऑफ यू आर रेडी नेक्स्ट वीक ओके नेक्स्ट वीक डोंट मैटर दोज यू आर रेडी टुडे स्टार्ट हर्ष हाँ यस वेरी गुड यू आर प्रेजेंटिंग Yes, Harsh, what happened? Anil left. Harsh Sharma. सर एक मिनट सर सर मैं सर लैपटॉप से प्रेजेंट कर रहा हूँ तो हाँ सर मुझे प्रेजेंट करना है मेरा क्रोम प्रेजेंट वो प्रेजेंट करना है मुझे तो मैं उधर लिखे आ रहा है 3 ऑप्शन सर स्क्रीन अब विंडो अब क्लिक करूंगा अच्छा कोशिश करो पार्थ शर्मा meanwhile let Parth talk to me Parth unmute yourself सर are you Parth हाँ पार्थ कैसे हो पार्थ बेटा पार्थ शर्मा सर क्या ना पार्थ शर्मा how are you बेटा फाइन पढ़ाई मन लगाओ बेटा पार्थ देखो यू आर वेरी गुड स्टूडेंट बेटा है ना लेकिन अगर हम मेहनत नहीं करेंगे ना बेटा तो कुछ भी नहीं होगा हमारा ठीक है पार्थ हैव कॉन्फिडेंस सर स्टार्ट डूइंग वर्क हार्ड यस हर्ष हर्ष से कहाँ शुरू हुआ हाँ नाउ प्रेजेंटिंग यस ओके गुड हर्ष गो अहेड चैप्टर 2 I can see on your screen chapter 2 सर प्रेजेंटेशन इज हाँ स्टॉप स्टॉप पे आ रहा है चलो ठीक है एक बार कोशिश कर लेना बेटा यस और सर है ना सर कैन आई प्रेजेंट इट Sir, I am ready. हाँ ऑल ऑफ यू आर बी रेडी बेटा नाउ आई एम सर राधिका वो बोल रहा है सर हाँ राधिका ओके हर्ष का छोड़ दो बेटा हर्ष हर्ष आप ऑफ कर लो बेटा स्टॉप प्रेजेंटिंग हाँ राधिका इज नाउ प्रेजेंटिंग वेरी गुड राधिका गो अहेड राधिका छोटे छोटे प्रेजेंटेशन लो बेटा है ना लंबा लंबा जरूरत नहीं है I want to know whether you can do it or not.
है ना बेटा? हाँ, गुड। Om Shri Sai Ram. वेरी Welcome. गुड। My topic is physical and chemical change. वेरी गुड। Physical change. Physical changes are changes affecting the form of the chemical substance, but not वेरी its chemical composition. Physical changes are used to separate mixture into their component compounds, but can also usually be used to separate compound into chemical element or simpler compound. Chemical changes. Chemical changes occur when a substance combines with another to form a new substance called chemical synthesis, or alternatively chemical decomposition into two or more different substances. These processes are chemical reaction and in general are not reversible except by further chemical reaction. यस यस राधिका, Physi- एक मिनट बेटा, बैक बैक करो, बैक करो, स्क्रीन बैक करो थोड़ा। नहीं नहीं, अभी जहाँ थे ना स्लाइड पे, क्या कर दिया राधिका? हाँ, पीपीटी में जाओ। हाँ, गुड गुड गुड, यस यस, स्टॉप हियर, यस यस, स्टॉप देयर। एश लिखा था ना, वहाँ पर लाओ। नेक्स्ट स्लाइड। या गुड, स्टे हियर। व्हाट इज योर पिक्चर? व्हाट डू यू मीन बाय, Chemical change. व्हाट डू यू मीन बाय द पिक्चर बेटा? या दिस पिक्चर, एक्सप्लेन दिस पिक्चर। The ashes cannot Sir, convert back into एक its मिनट बेटा, लेट राधिका। original form. Ashes are formed because of burning of wood or coal or charcoal, and this cannot be converted back into the coal or wood. So it is a chemical change. Good. Go ahead. physical properties. A physical property is there any property that is measurable whose value describes a state of a physical system. The changes in the physical properties of a system can be used to describe its changes between momentary states. Physical properties are often referred to as observables. Observables. There are not model properties. For example, do you remember what physical properties are? Color, shape, mass, volume. State of matter, length, magnesium, texture, and density. Chemical reaction. Radhika, can you define density, beta? What Yes, do you sir. mean by density? Density. Define density. Sir, I If you don't know. can say otherwise, say sorry. Density which is taken in mass. Density. Anybody? Yeah. Mass Radhika, per ma'am? volume unit which is taken the mass. हाँ, mass per unit volume is called density. Density. है ना बेटा? Density. हाँ, डेंसिटी की वजह से हम पानी में डूबते हैं या तैरते हैं, डिसाइड करते हैं, है ना? जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर में। मैं बताता हूँ आपको। क्या करो, एक ग्लास में पानी लो और घर में एक आलू चूज करो, उस आलू को पानी में डाल लो, आलू डूब जाएगा आपका। अब उस पानी में नमक डाल के डिजॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मेक अ सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, और अब उसी आलू को डालो। अब आपको दिखाई देगा चेंज, that potato will start floating, right? Do it. Yes, sir. And think about the reason. Okay, go ahead. Chemical Because reaction. the density of that water is greater than the density of potato. In the beginning, density of potato is more than the density of water, so it will sink. But when you added salt, then density of water now increased because salt mix हो गया उसमें, तो उसका मास पर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, एंड पोटैटो डेंसिटी उसकी कंपेरिजन में कम हो गई, तो स्टार्ट किया फ्लोट करने लगा। ठीक है बेटा, गुड। इसी कारण से डेड सी में क्या होता है? नथिंग विल सिंक, एवरीथिंग में फ्लोट्स। डूबते नहीं है। Float. डेड सी नाम सुना है आपने? Yes, sir. Yes, डूबते नहीं sir. उसमें, फ्लोट करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट Salt डिजॉल्व होता बेटा, है। है ना? बहुत ज्यादा सॉल्टी। हाँ, वेरी गुड, गो अहेड राधिका।
Chemical reaction, a process that involves rearrangement. हिमांशु म्यूट योरसेल्फ। जी इको हो रही है ना, हिमांशु माइक बंद करो बेटा। हाँ बेटा, आप कंटिन्यू रखो। राधिका Chemical आप reaction, कंटिन्यू करो। या a process that involves rearrangement of the molecular or ionic structure of the substance as distinct from a change in physical form or a nuclear reaction. For example, reactants, coal, oxygen. Products, carbon dioxide. coal burning and getting rusting. Rusting is also chemical change, है ना बेटा? It's a chemical change. Yes, Next sir. slide. Sir, Next is slide. rust Next slide. is Next. an iron oxide? Is it used? Sir, is oxide? हाँ हाँ बेटा, it's oxide है, iron oxide होता है rust. Next slide, राधिका. Next slide. Rusting. Rust is an iron oxide, a usually reddish brown oxide formed by the reaction of iron and present in the presence of water and air moisture. Several forms of rust are distinguishable both visually and the spectroscopy and from under different circumstances. For example, this photo. Magnesium ribbon, a light silvery white, moderately hard metallic element, and that in ribbon or powdered from burns with a brilliant white flame, Yes, often beta. cheaply. No, Radhika, don't Yes. read the whole slide, beta. Say the important points only. Okay, you can say magnesium ribbon, when it is burnt, it gives us magnesium oxide, which is a new substance, so it is a chemical change. Next slide. Okay, sir. Okay, sir. Next slide. Galvanization. Galvanization. Yes, a galvanization is a physical change or chemical change? Sir, Radhika. your voice is not clear. Okay, I'm asking again. Galvanization is a physical change or chemical change? Sir, physical change. Physical change, correct. Because no new substance is formed. Yes, Radhika, go ahead. Galvanization. Crystallization. Crystallization is the process by which pure crystals of a substance are obtained from impure substance. Crystals are the purest state of the substance. This is called crystallization. Very good. Thank you. So crystallization is a physical change or chemical change? Radhika. Sir, sir, Chemical change. राधिका को बोलने दो ना. Chemical change. राधिका को बोलने दो बेटा. राधिका को बोलने दो. राधिका. Sir, chemical change. कैसे? Which new substance is formed during crystallization? If I am going to prepare crystals of copper sulfate, will Sir, any new crystals. substance? हाँ, crystals copper sulfate ही होगा ना. कॉपर सल्फेट का बना रहे क्रिस्टल, तो ऐसा थोड़ी ना कोई और बन जाएगा. इसमें क्या होता है, सिर्फ इम्प्योरिटी रिमूव होती है बेटा. इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती है और प्योर सब्सटेंस मिलता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स. 3 डायमेंशनल शेप में मिलता है. So crystallization is also a physical change, not a chemical change. ये सब हमें दूर करना है बेटा. चैप्टर का नाम ही है फिजिकल एंड केमिकल चेंज. So whatever the process we are undergoing, to decide. Okay, very good. Well done. Good. Thank you, sir. Well done, beta. Sir, now Harsh Note down. Sharma. Yeah, now Harsh. Harsh. हाँ ऋषिका. आप भी ready हो? ठीक है बेटा. Sir, Harsh. First, हाँ, can I Harsh. present? Yes. Start. Yes, Harsh. Go ahead, Harsh. Okay, sir. Sir, can you see? हाँ बेटा. Now you are presenting. Now you are presenting your Sir, can you screen. see now? अभी तो कुछ दिखा नहीं. हाँ, you are presenting to everyone. Now open your file. Sir, I have opened. You have opened. So it may take. Yes. Chapter 2. Nutrition Yes, in sir. animals. Yes, sir. Yeah, good. Nutrition and Fine. digestion. Go ahead.
Digestion, the breakdown of complex component of food into simpler substance is called digestion. हर्ष Yes, हर्ष sir. बेटा Yes, पीपीटी sir. मोड में लाओ, पीपीटी करो, प्रेजेंटेशन मोड में लाओ, प्रेस F1 F5 सॉरी, प्रेस F5. F5. हाँ Yes, sir, I am. Sir, can you see now? आ जाएगा 2 मिनट में. चलो बोलो आप, चलो शुरू करो. हाँ Digestion, the breakdown of complex component of food into simpler substance is called digestion. ओके. Amazing fact, बढ़ाओ आप, starfish. स्लाइड बढ़ाओ, स्लाइड नहीं बढ़ रही, सर अभी बढ़ा दिए. स्लाइड आगे नहीं जा रहा बेटा. हाँ बढ़ाओ, स्लाइड आगे बढ़ाओ. सर बढ़ा दिए सर, वो आपका सर नेट सर स्लो होगा तो स्क्रीन सर फ्रीज हो गई। अच्छा स्क्रीन फ्रीज है, हाँ तभी तो. सर बढ़ रही है सर स्लाइड. हाँ हाँ आप बढ़ा रहे हो. यस सर. तो मुझे हाँ यस Yes, sir. गुड गुड. Amazing fact. Starfish Yes. feed on animals covered by hard shells of calcium carbonate. After opening the shell, the starfish popped out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and food is slowly digested. हाँ क्या मजा आता. हर्ष रुकना बेटा, क्या मजा आता, हम भी ऐसा ही कर पाते. पूरा मुंह से अपना स्टमक बाहर निकाल लेते और पूरा फूड उसमें चला जाता है. क्या मजा आता है Yes. ना. लेकिन ऐसा Yes, हम sir. लोग नहीं कर पाते. 2 मिनट में खाना खा लेते. 2 मिनट में ही सर Yes. डाइजेस्ट. राइट, गुड गुड, गो अहेड. Parts digestive system contains. Digestive system contains buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and anus. Good. Ingestion, the process in which we take food into our mouth is known as ingestion. Very good. Saliva, what is the function of saliva? Answer, the saliva break down the starch into sugar. Villi, a organism have thousands of finger-like outgrowth is called villi. Digestion in animals. What is curd? Answer, partly digested food returns to the stomach of ruminants to the mouth for further chewing is known as curd. Rumination. When curd returns to mouth in small lumps and then animal chew it, this process is known as rumination. Digestive system of ruminant. Rumen. This is the first and the largest chamber of the stomach. Intestine. Reticulum. This is the second chamber of the stomach. Esophagus. Omasum. This is the third and the smallest chamber of stomach. Abomasum. This is the last chamber of the stomach. And The break. Sir, I want to ask. Yes, sir. Harsh, Yes, sir. do we also have compartment in our stomach? Yes, sir. No beta, we don't have any compartment in the stomach. Sir, हमारा why? स्टमक सिंगल है, कोई पार्टीशन नहीं है. एनिमल की बॉडी में ग्रास ईटिंग एनिमल रूमिनेंट्स हैव Ruminants. 4 चैम्बर्स, उनमें चैम्बर बने होते हैं अलग अलग. इसमें से एक चैम्बर होता है रूमेन, और जब वो घास खाते हैं ना बेटा, काटते जाते हैं और वो सीधा स्वेलो करते हैं, तो उस समय वो Yes, कहाँ sir. जाता है, रूमेन में जाता है. Ruminant. इसीलिए Ruminant. इसका नाम है रूमिनेशन, है ना. Yes, sir. Okay. रूमिनेंट, इसलिए नाम पड़ा होगा रूमिनेंट. गुड, Yes. गो अहेड. Sir, now I want to ask some questions. Yes, ask. The breakdown of complex substance of food into simple substance is called. Sir, I want to ask to this question. to Digestion. अदीब का नाम लिया. अदीब आंसर करो बेटा. Yes, sir. Harsh, please repeat. The breakdown of complex substance of food into simple substance is called digestion, ingestion, or Digestion. absorption. Okay, right answer. Correct answer. Very good. Yes, good, Adeeb. The saliva breakdown into dash into sugar. Sir, I want to ask to Raghav Tiwari. राघव तिवारी, be ready बेटा.
The saliva break down dash into sugar. सिंपल Protein. शुगर। सर सलाइवा की स्पेलिंग गलत है क्या? No, sir, starch. Starch. ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था, आप लोगों ने Yes, गड़बड़ sir. लिखा था कई लोगों ने। Why do we when we chew bread for longer period it tastes sweet? मैंने सवाल पूछा था ना, जब हम रोटी को देर तक चबाते हैं तो मीठी लगती है, तो उसमें सलाइवा मिक्स होता है बेटा। और राइट डाउन इसका आंसर फिर सुनो, देखो सलाइवा कंटेन्स an enzyme called amylase or tyline, and this enzyme converts starch into simple sugar called maltose, है ना? And that's why it tastes sweet. Very good. Go ahead. Okay, sir. Curd returns to mouth of animal in small lumps and chew it again. This process is known as. I want to ask for this question for Anil. Anil C. हाँ बताओ आंसर बोलो। You can see on the screen also option दिया हुआ First, है। carnivorous, insectivorous, or rumination. सर कैन आई? The third is rumination. बोलो अनिल। अनिल ट्राई करो बेटा। अनिल नहीं बता रहा, कृष्णा बोलेगा। कृष्णा आंसर करो। Sir, correct. Rumination. हाँ करेक्ट, वेरी गुड कृष्णा। ओके और Yes, sir. I have last. लास्ट, वेरी गुड। The main steps of nutrition in humans are first digestion, ingestion, egestion, assimilation, absorption. Second is ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. Shubhra. Digestion, absorption, assimilation, and digestion. Yes, correct. Thank you. By Harsh Verma, class 7B. Very Satyasai good. Vidyavihar, Gold Vidyapur. Well done. Good. Thank you, sir. Very Thank you, good. sir. Now who is ready? Raise your hand. सर परम. Param is ready now. Okay, Param. Start presenting. Everybody beta, be ready, है ना? Shubhra, our group is ready. Rishika, our group also ready है. Very good. क्या बात है? कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट वीक में हम सब तो कर ही लेंगे। आज थोड़ा सा मुझे पढ़ाने देना मगर, है ना? थोड़ा सा पढ़ाने देना बेटा। चैप्टर यू डिसाइड बेटा, नो डजंट मैटर, है ना? अगर आप जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ उससे प्रिपेयर करो तो और अच्छा, मेरा लोड कम हो जाएगा। सर प्रेजेंट हो रहा है? हाँ हो रहा है बेटा। परम, यस, यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन। सर ओम विच श्री साईराम आ चैप्टर गया। प्रेजेंटिंग? ओम श्री साईराम, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मेन अट्रैक्शन सेल, main attraction cell made by Param Iyer. Yes. There are two types of cell, eukaryotic cell and prokaryotic cell. वेरी गुड। आप तो 8th क्लास में पहुंचा दिया हमें। Eukaryotic यू cell. हैव टेकन अस इन क्लास 8, आपने हमें Yes, 8th क्लास में sir. ले गए। हाँ बढ़िया, गुड। करो। The eukaryotic cell has definite of cytoplasm and a nucleus. The nucleus is surrounded by a nuclear membrane which separates the nuclear material from the cytoplasm. The cells of algae, other than blue and green algae, fungi, bryophytes, vascular plants and protozoa, and all animals are eukaryotic cells. And what are we? Sir, we are prokaryotic cells. No beta, we are also eukaryotic. We are also having eukaryotic cells बेटा, है ना? हमारे पास भी eukaryotic cells हैं। Our nucleus is also surrounded by nuclear membrane, and all other also organelles, cell organelles are membrane bound. Okay, go ahead. देखो ना, all animals देखा ना आपने, all animals, they are also animals. Good. Eukaryotic diagram. cell. Prokaryotic cell. In prokaryotic cells, the nuclear material is not surrounded by a nuclear membrane. Good, Param, see the main difference beta, है ना? Nucleus, actually they don't have true nucleus. They have nuclear matter,
but it is not surrounded by a nuclear membrane. But in eukaryotic cell, the nucleus is surrounded by a thin membrane called nuclear membrane. Very good. Go ahead. The nuclear material without a nuclear membrane is called incipient nucleus or nucleus. The nucleus lacks a nuclear membrane. देखो मेन पॉइंट ये है, इट लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा, है ना? गुड. Sir, Ram Some Lakhan is prokaryotic also in this cells. meeting. या गो अहेड परम. Cell wall. Cell wall is the outer covering of plant cells. It is present only in plant cells and absent from the animal cells. The cell wall is formed of 4 layers, namely middle lamella, primary cell wall, secondary cell wall, and tertiary cell wall. Vacuoles. Vacuoles are membrane-bound hollow or liquid-filled cytoplasm structures. Vacuoles are characterized by cytoplasm, lipoprotein, tonoplast, contractile vacuole, or autophagosome, digestive vacuole, pinocytosis, and pinosome. Plant vacuole stomata. Nucleus. The nucleus is defined as any formation surrounded by cytoplasm from which chromosomes arise during cell division. Nucleus is the most important part of the cell. It controls all the cellular activities. So it is referred to as the controlling center of the cell. It is a controlling central cell. All activities are controlled by nucleus. Very good. It was first discovered by Robert Brown in 1831 in flowering plants. The study of nucleus is termed as karyology. Nucleus picture. Thank you for watching this presentation. Very good. Well done, sir. है ना? थोड़ा समझिएगा इसके बारे में, बहुत सारे टर्म्स थे इसमें. Sir, can I present? Sir, can I एक मिनट बेटा. present? परम. Sir, can I Okay, present? बेटा. Sir, एक can मिनट I बेटा. present? परम. Yes, sir. Madam, there were so many terms, biological terms used in your slide. Right, beta? Whenever you get time, try to study about these terms one by one. Okay? Through encyclopedia. Yes, है ना? बहुत सारे इसमें देखोगे आप, बहुत सारा में नए नए वर्ड यूज किए हो, है ना? इन सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज, है ना, कलेक्ट Can करो. I present? Sir, can I Good. present now? एक मिनट. नाउ राम लखन लोधे ज्वाइन. क्या बात है? राम Yes, sir. लखन, साईराम लखन, साईराम राम लखन, वेयर आर यू? वीडियो खोलो थोड़ा राम लखन. कैसे दिख रहे हो भाई राम लखन? सर उससे तो एग्जाम भी नहीं दिया था. हाँ हाँ, अभी ज्वाइन किया बेचारे ने. उसने आईडी अपना एक्टिविटी नहीं किया था, तो संयोग से मैंने बात किया उससे फोन पे, फिर मैंने उसको बताया कैसे कैसे करना है, तो उसने कर लिया. गुड राम लखन. नाउ कंटिन्यू. ओके बेटा. डन मैटर. जब जागो तभी सवेरा. जहाँ से हमने अच्छा काम करना शुरू कर दिया, वहीं से हम समझो, है ना, मनुष्य होने के नाते ये अच्छा होता है बेटा, है ना? गुड. नाउ टाइम इज 2:30. हाँ, कौन बता रहा था? रेडी? जैनुल. Sir, Zanu. Sir, me, Mohammad Adnan. Yes, sir. ग्रुप वाले रुक Sir Himanshu. Sir, Mohammad Adnan. हाँ हाँ, रुक जाओ. ग्रुप वाले रुक जाओ अभी. राइट? Sir Raghav Tiwari. हाँ, जैनुल को करने दो. आफ्टर जैनुल I would like to share my views, है ना? थोड़ा सा पढ़ाना भी है बेटा आगे, है ना? थोड़ी सी और कुछ एक्टिविटी बताऊंगा, वो करना आज घर में. एंजॉय करोगे आप, है ना? और प्रेजेंटेशन Sir, चलता can रहेगा. you see my screen? हाँ हाँ जैनुल, you are presenting. Sir, कल रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं? कल कहाँ हमारा क्लास है बेटा? सर कल तो सैटरडे है. हाँ हाँ, नेक्स्ट Sairam. पीरियड आएगा. Sairam. थर्सडे को. Presentation Sairam. by Zanul. वेरी गुड. Chapter 8. Winds, storm and cyclone. वेरी नाइस. Wind. The moving air is called wind. हाँ बेटा, सभी लोग ध्यान से देखो इस स्लाइड को. जैनुल पढ़ा रहा है हम लोगों को आज.
Yes, Janu. The wind. The moving air is called wind. Warm air. The warm air is lighter and rises up. Very good. Cold air. The cold air moves down. Moves down. Yes, because it is heavier. ये भारी होता है ना. Thunderstorm. Thunderstorm. Thunderstorm develop in hot, humid, and tropical areas very frequently. The swift movement of falling water droplets along with the rising air, this is called thunderstorm. Good. Cyclone. The formation of a very low pressure system with very high speed wind revolving around is called cyclone. Thank you and Sai Ram. चलो, very good. सर मैंने हाँ। मोबाइल को बनाई है सर इसलिए हाँ परेशान बेटा, बढ़िया 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 जैनब, गुड. कोई बात नहीं, छोटा सा ही था बट इट वाज नाइस बेटा. एंड वी कुड हियर योर वॉइस आल्सो. नाइस प्रेजेंटेशन है ना बेटा. नाउ बी रेडी फॉर द नेक्स्ट पीरियड बेटा, है ना. मैम एक नाउ और बात लिसन. करते हैं। एक मिनट बेटा. हाँ बेटा, हम टाइम देते रहेंगे आपको. पहले सब कुछ एक बार करने दो. Those who have not done, let them do one by one first. ठीक है. नाउ रेनू का नाम लिख लेना बेटा सबका. ओके. Yes, sir. नाउ आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन, है ना. एंड हु अग्रीड फॉर मॉर्निंग टुडे? आज अदीब. हाँ अदीब बेटा, है ना. अदीब. यस सर। हाँ बेटा, बताना मुझे. आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन. सर इट इज विजिबल। हाँ विजिबल बेटा. हाँ. नाउ लिसन. This is my PPT and I am going for slideshow, right? So now देखो, we talked about air exerts pressure, है ना. और कुछ और एक्टिविटी बता रहा हूँ air exerts pressure पे, and you can do very nicely बेटा, है ना. very nicely you can do. आज नेक्स्ट बता रहा हूँ, है ना. और सबके घर में सारा सामान है. बताऊँ मैं? यस सर। अरे हाँ बेटा. यस बेटा. देखो आप, देखो सबके घर में ये प्लास्टिक वाली बोतल होगी. सबके घर में होगी प्लास्टिक वाली बोतल, है ना. यस सर। ये बोतल ले लो. कैप का कोई काम नहीं है, कैप को अलग रख देना. Sir, बात सुनना मुझे. Prachita is और- saying that your हाँ, screen हाँ. is not visible to them. Others, Adib, can you see better the screen? यस सर। Yes sir. Okay. Screen is So- visible. Now listen बेटा, सेम बता रहा हूँ. एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? एयर एक्सर्ट्स एयर प्रेशर. अब क्या एग्जॉस्ट करना? प्रेशर। हाँ, Air इसके बॉटम में pressure. इसके बॉटम में होल कर लेना बेटा. छोटा सा होल कर लेना बॉटम में. तुम्हारे पास कॉम्पास होगा ना, कॉम्पास से कर लेना होल. ठीक है. बॉटम में एक होल कर लेना. ठीक है. अच्छे से एक होल कर देना. अब क्या करना? एक बलून लेना. बलून को अच्छे से फुला के देख लेना पहले ढंग से. इस बलून को इसके अंदर डाल देना बिना फुलाए हुए. बलून को अंदर डाल के, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको मोड़ के इसमें लगा देना. इसमें ऐसे के मोड़ के लगा दोगे तो बलून इसके अंदर पहुंच जाएगा, है ना. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। है ना. बलून अंदर डाल के और उसका माउस को उल्टा करके इसमें बॉटल के ढक्कन में इसमें लगा देना तो फिट हो जाएगा बेटा. अब देखो मेरा एक्टिविटी शुरू होता है. ठीक है. अभी होल को बंद मत करना, खुला रहने देना. नाउ ब्लो. यहाँ पर मुंह हवा डालकर बलून को फुलाओ, है ना. यहाँ मुंह में फुलाना ऐसे करके. अब देखो बलून फूल रहा है कि नहीं, ये ध्यान देना है आपको. जो मैं कह रहा हूँ करना. एंड शेयर विथ मी योर एक्सपीरियंसेस. और होपफुली अगर आप एक वीडियो बना सकते हो छोटा छोटा, अपना ही वीडियो बनाओ. कुछ कहीं ऐड करने की जरूरत नहीं है. आप जैसे जैसे कर रहे हो उसकी वीडियो बनाओ बेटा, है ना. आज फिर मामा या कोई भैया हो तो पकड़ के मोबाइल खड़ा रहेगा, आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी. लेकिन पहले कर लो एक बार. वीडियो बनाने समय दोबारा करो. पहले करके देख लो, फिर वीडियो के समय दोबारा बनाओ बेटा, है ना. बलून इसके अंदर डाल के मुंह से फुलाओगे ना तो आप देखोगे बलून पूरा फूल जाएगा इसके अंदर, राइट. अब आप क्या करो, बलून फूला रहने दो और उस समय इस होल को दबा दो, बंद कर दो. तो क्या बलून खाली हो रहा है कि नहीं हमारा? ध्यान से देखना. बलून फूला हुआ रहेगा. ये बलून जो तुम्हारा रहेगा अंदर बेटा, ये पूरा फूल जाएगा बलून.
और उसके जब मैं जैसे ही इसको बंद कर दोगे तो मुंह हटा दोगे ना तब भी खाली नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ बलून से फुलाने के बाद बॉटल पे उसका ढक्कन लगा देना है, कैप। ढक्कन नहीं, ढक्कन को तो फेंक दो, ढक्कन गटर में फेंक दो, ढक्कन वो काम नहीं है। यहाँ होल को बंद कर लेना, ऐसे फुलाया होल को बंद कर देना। होल को बंद करने के बाद ये मुंह खुल जाएगा, मुंह से बाहर निकल जाएगा, तो क्या बलून वापस छोटा होता है या नहीं होता है? आप देखोगे नहीं होगा, बलून का साइज जैसे फूला ही रहेगा। और फिर क्या करो, हाँ यहाँ से ओपन कर दो, होल को हटा दो हाथ, फिर देखोगे बलून डिफ्लेट हो जाएगा, बलून जो है फिर छोटा हो जाएगा, खुला हुआ नहीं रहेगा। फिर आप हवा भरो, इसमें हवा भरो। अगर ये बलून होल खुला हुआ है तो बलून खुला पाओगे, अगर आपने होल बंद कर दिया, अनिल बंद करो बेटा माइक, अनिल क्लोज योर माइक, है ना बेटा। अब देखो, अब क्या करो, आप होल को बंद रखो और बलून को फुलाने की कोशिश करो। क्या आप फुला पाते हो? देखना आप करके, बिल्कुल नहीं फुला पाओगे, लेकिन जैसे बलून होल खोल दोगे फिर फुलाओगे तो बलून फूलेगा, और बलून फुलाने के बाद अगर बंद कर दोगे तो फिर बलून खाली नहीं होगा। लेकिन जैसे आप यहाँ से खोल दोगे, हवा जाएगी तो ये प्रेशर लगाएगी, ये बलून खाली हो जाएगा। अब इसी में मजेदार, ध्यान से देखना, है ना। बलून फुला लो, फुला करके होल को बंद कर दो तो बलून फुला रहेगा। अब इसमें ग्लास से या पानी भर दो बलून के अंदर, बलून फुला हुआ रहेगा, पानी भर दो और उसके बाद अब होल को छोड़ो, खोल दो। ये जो पानी है एकदम स्प्रिंकल की तरह, झरने की तरह, फाउंटेन की तरह बाहर निकलेगा, जोर से निकलेगा, राइट। कुछ नीचे बर्तन लगा देना, या कुछ ऐसा मत रखना कि गीला होने वाला सामान हो जहाँ पर आप कर रहे हो, छोटा सा रख लेना नीचे काम करते समय, एंड यू विल एंजॉय दिस। तो कितनी बातें मैंने बताई, कितना आसान है। सिर्फ आपको बॉटल लेना है, नीचे एक होल करना है, यहाँ पर होल करने के बाद एक बलून इसके अंदर डाल करके, बलून को पहले फुला के देख लेना बेटा, बलून पंक्चर नहीं होना चाहिए, बलून अच्छा होना चाहिए और फिर मुलायम हो जाए बलून फुलाने से, ऐसे करके मुलायम कर देना उसको। डालने के बाद बलून को उल्टा लगा दोगे, बलून फिक्स हो जाएगा। अब फुलाओगे, ये होल को खुला रखोगे तो बलून फूलेगा, और जैसे होल को बंद करोगे बलून खाली नहीं होगा। अगर होल को बंद कर बलून को फुलाओगे, बलून फूलेगा ही नहीं आपसे। इस सब के बारे में सोचिएगा, क्यों नहीं फूल पा रहा है। और फिर बलून को फुला लो और इसको बंद कर लो, जैसे पानी डालो थोड़ा सा, और फिर आप होल को खोल दो, एयर जाएगी, एयर प्रेशर लगाएगी, और पानी जो बलून के अंदर था दैट विल कम आउट लाइक अ फाउंटेन, झरने की तरह पानी बाहर निकलेगा जोर से। सर, ठीक है, सो डू इट, है ना। यस बेटा, हाँ। लो प्रेशर एरिया, हाँ, wind blows from high pressure area to low pressure area, है ना। Yes, sir. It moves from high pressure area to low pressure area बेटा। चलो ये कर लोगे आप लोग? यस सर। बोलो भाई, है ना। हाँ कर लो बेटा। यस सर, Now, यस सर, टाइम भी हो गया। हमारे पास वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कई सारी एक्टिविटी हैं। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, है ना। एक और करना चाहोगे आप? आपके घर में रिफिल जो होती है ना, रिफिल जो रिफिल खाली हो गई आपकी, उसके जो ऊपर स्टील का जो पिन लगा होता है आगे, यहाँ पर एक बॉल होता है बेटा, छोटा सा बॉल होता है जो रोल करता है। तो क्या करो, उस रिफिल को पकड़ के पत्थर के ऊपर इस बॉल को घिसते जाओ, घिसते जाओ, घिसते जाओ, घिसते जाओ, घिसते जाओ, ये बॉल बाहर निकल आएगा। फिर आप फूकोगे ना इधर से तो हवा बाहर निकलेगी इधर से, मतलब यू आर रेडी, बॉल बाहर निकल गया। या बहुत सारे में बहुत ही पतला सा रहता है लगा हुआ रिफिल में, वो वाला रिफिल ले सकते हो। इसका जो है जो नीब है वो निकाल देना बाहर, पतला वाला बेटा, है ना। तो रगड़ के बॉल निकाल देना। अब क्या करो, आपके घर में डिटॉल या ऐसा कोई बॉटल होगा, डिटॉल का जो कैप होता है ना बहुत अच्छा होता है, टाइट लगता है वो, उसमें एक छोटा सा होल कर देना, कैप में होल करके ये वाला रिफिल को ऐसे घुसा देना, है ना, ऐसे अंदर घुसा देना। और अगर लूज हो तो साबुन, गीला साबुन लगा देना, तो एयर टाइट होना चाहिए यहाँ पर। और ऊपर में ऐसे पतला सा रहेगा ये। अब क्या करो, इसमें पानी भर लो, ढक्कन खोल लो, पानी भर लो, इसमें थोड़ा सा खाली छोड़ देना, और इसको लगा के यहाँ से मुंह में लेके खूब हवा भरो अंदर। हवा भरने के बाद आप मुंह हटा लो और देखो क्या होता है। आप देखोगे पूरा एक फाउंटेन, पानी बाहर ही चल जाता है, पूरा फाउंटेन जैसा निकलेगा। अब सोचो ऐसा क्यों हुआ आपका?
अगर आप मुंह से एयर इसके अंदर नहीं भरोगे, आपने एयर भर दिया, उससे एयर जा रही थी तो वो उसके अंदर एयर वो- भरी थी, इसलिए वाटर को कोई हाँ, जगह नहीं हुई तो बाहर निकल के आ प्रेस गई। करेगी, प्रेस करेगी तो प्रेस करने के बाद पानी जो है वो बाहर निकलेगी, है ना। सर एयर को भी जगह चाहिए होती है। हाँ बेटा, इसी एक्सपेरिमेंट को आप एक और तरीके से कर सकते हो। ऐसा बना लिया आपने, रेडी हो। अब क्या करो, इसमें सब लगा, अब इसमें क्या करो, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दो। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जो किचन में होता है ना, आप बोलो तो दुकान में मिल जाएगा, 2 रुपए का 5 रुपए का पैकेट पूरा दे देगा। थोड़ा सा नहीं, नमक नहीं, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा बेटा, जो घर में किचन में रहता है, मम्मी डालती है, दाल वगैरह बनाती है तो, है ना, कभी कभी या आप कुछ बनाते हैं उसमें डालती है। अब क्या करो, इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा और भर दो पानी, ठीक है, हिला दो अच्छे से, ये डिजॉल्व हो जाएगा। अब क्या करो, इसमें डालो थोड़ा सा विनेगर, विनेगर मिल जाएगा गोलूंगल दुकान में, आपके घर में होगा व्हाइट विनेगर। थोड़ा सा विनेगर डालो और क्या करो, ये जो रिफिल वाला था हमारा ढक्कन, उसको लगा करके बंद कर दो, थोड़ा सा ऐसे शेक कर दो। शेक करके आप छोड़ोगे, अपने आप इधर से पूरा जो पानी है बाहर निकलेगा, बहुत दूर तक जाएगा। अगर आपने अच्छे से बनाया ना तो टेबल पे रखोगे तो पूरा छत तक जाएगा पानी, इतना जोर से जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पर सर उसकी स्ट्रॉ बंद करके शेक करना है। नहीं, कोई बात नहीं, स्ट्रॉ तो ऊपर नैरो है ना बेटा, अब ऐसे शेक करके छोड़ोगे ना पूरा जोर से पानी निकलेगा। तो यहाँ पर एयर नहीं, यहाँ पर जब आपने 2 मिलाया, बेकिंग सोडा और विनेगर, तो बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस दबाएगी पानी को, और ये पूरा मिक्सचर जो है पानी का वो बाहर निकलेगा विद ग्रेट प्रेशर, है ना। सो दैट इज ऑल्सो सेज दैट आपने प्रेशर बढ़ाया इसके अंदर, भले एयर का नहीं था, अंदर ही अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, वो गैस, हाँ, दैट इज हाँ, व्हाट हैपेंड, बोलो बेटा, है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज, ये हमारा खत्म हुआ, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ऐसे कई सारे एक्टिविटी हमारे पास है ना, मैं बाद में शेयर करता रहूंगा, जितना मैंने किया उतना करके देखो बेटा। नाउ हाई स्पीड winds आर accompanied by reduced air pressure। अब देखो मैंने कहा था, देखो मेरे बात, कैन यू सी मी बेटा, मैं दिख रहा हूँ आपको? यस सर। यस सर। यस बेटा। अब देखो ऐसा एक पेपर का स्ट्रिप काट लो, आप भी काट सकते हो, और मेरी तरह इसको एक तरह मुंह में ले लो, एंड नाउ ब्लो एयर ऑन द टॉप। इसके ऊपर मैं एयर ब्लो करूंगा, देखो क्या होता है। अरे देखा मैंने जो किया? यस सर। है ना, देखो कैसे हो रहा है पेपर हमारा। पेपर ऐसा क्यों हो रहा है? देखो पेपर के ऊपर से मैं हवा ब्लो कर रहा हूं, तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया हो जा रहा है बेटा, और नीचे हाई प्रेशर है, ये पेपर को ऊपर उठा दे रहा है। आप भी करके देखिए, ठीक है बेटा। अब मैं दूसरा एक्टिविटी दिखाता हूँ, अनदर एक्टिविटी आप साइंस बुक निकालो अपनी। हाँ, 1 मिनट बेटा, ओपन योर साइंस बुक एंड सी दिस बॉय, फिगर नंबर 8.5, ब्लोइंग ओवर अ स्ट्रिप ऑफ पेपर। निकालो पेज नंबर 82। ये वाला एक्टिविटी में कर रहा था एक्चुअली, ठीक रहा, आप भी कर सकते हो। हाँ बेटा, आप भी करना है ये। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, हम स्ट्रिप के ऊपर से हवा ब्लो करा रहे हैं, और धीरे से करो तो कुछ नहीं होगा, धीरे से करो कुछ नहीं होगा, धीरे से जोर से हवा आनी चाहिए, हाई स्पीड विंड आनी चाहिए। ऊपर से हाई स्पीड विंड तो ऊपर रिड्यूस प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, नीचे हाई प्रेशर है, लो प्रेशर एरिया हो जाएगा और नीचे से हाई प्रेशर एरिया हो जाएगा। हाँ, ऊपर लो प्रेशर क्यों हुआ? क्योंकि हाई स्पीड विंड था ऊपर में। जहां पर भी हाई स्पीड विंड होगा वहां पर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, है ना बेटा, ठीक है। यस सर। ठीक है, इसका एक और एक्टिविटी देखो, एक बॉटल ले लो, आप एक बॉटल ले लो ऐसे, और एक पेपर का ऐसे मोड़ के बॉल बना के इसकी माउथ पे रख दो। देखो फिगर नंबर 8.3,
blowing into the bottle. और इस पेपर बॉल को जोर से हवा फूको कि बॉटल के अंदर जाए पेपर। आप जितना जोर से फूकोगे तो पेपर बाहर निकल आएगा और अंदर क्या जाएगा, है ना? क्योंकि जब आप जोर से फूक रहे हो तो क्या हो रहा है, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन रहा है और अंदर की हवा हाई प्रेशर है, वो इस बॉल को धक्का देकर बाहर निकाल देगी। सर पीछे से धक्का मारेगी वो उसे। पीछे से यस बेटा, हाँ। ऐसे एक और एक्सपेरिमेंट देखो, ये वाला करो। 2 बलून लेकर फुला लो, एक स्टिक में बांध दो और बीच में जोर से फूंक मारकर बलून को अलग करने की कोशिश करो। आप वो उल्टा होगा, जितना जोर से सर वो पास में चले जाएंगे। दोनों पास में आ जाएंगे, दोनों पास में आ जाएंगे, क्योंकि सर यहाँ वहाँ पर भी लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। लो प्रेशर है और आउटसाइड और साइड में हाई प्रेशर है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, है ना? और बलून और पास आ जाएगा। और आप अच्छे से करना चाहते हो ना, एक रिफिल लेना, खाली पेन ले लेना, इसकी रिफिल निकल गई हो और उसको लेकर के उससे फूकना हवा बीच में, है ना? तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज हैं। और जो मैंने मुरमुरे वाला कल बताया था वो भी करके देखो आप। इन सब में ऐसा ही होता है, जब जोरों की आंधी आती है ना बेटा, तो छत के ऊपर से हाई स्पीड विंड ब्लो करती है और वहां पर क्या बन जाता है, लो प्रेशर एरिया। और नीचे जो छत के अंदर की हवा है वो हाई प्रेशर एरिया है, वो छत को उड़ा के ले जाती है। ठीक है बेटा? सो ऑल दीज एक्टिविटीज नाउ सी हियर, है ना? यहाँ से देखो बेटा, एक्सप्लेनेशन है। दिस वन वेयर आई एम अंडरलाइनिंग, दिख रहा है सबको? When we blow into the mouth of the bottle, ये क्वेश्चन अगर आएगा, take a bottle and put a crumpled ball of paper on the mouth. Now blow hard and try to take the ball of paper inside. You are failing. The ball comes out. Why? तो आंसर होगा, when we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed. This decreases the pressure there. याद रखो, जहां पर भी हाई स्पीड विंड होगा, हाई स्पीड एयर होगा, वहां पर लो प्रेशर होगा, प्रेशर रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा। रिड्यूस लिखो, डिक्रीज लिखो, एक ही बात है। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर देन नियर द माउथ। और बॉटल के अंदर हाई प्रेशर एरिया है, वहां हाई प्रेशर है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट। ठीक है बेटा, रीजन समझ में आ गया? यस सर। एंड ऑल, हाँ बेटा, गुड। सिमिलरली जो हमने बलून के बीच में हवा डाला तो दे मूव्ड टुवर्ड्स ईच अदर और पास आ गए। हाउ कुड दिस वाज पॉसिबल? दिस कुड हैपन, अंडरलाइन कर लो, इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बलून्स वेयर समहाउ रिड्यूस्ड। दोनों बलून के बीच में लो प्रेशर हुआ। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने वहां पर जोर से हवा चली। हाँ, तेज हवा चलाई। जब भी तेज हवा चलेगी वहां पर लो प्रेशर एरिया हो जाएगा बेटा। ठीक है? इसका पेपर स्ट्रिप हमारा क्यों ऊपर हो गया? पेपर स्ट्रिप हमारा जो हमने पढ़ा था, देखो ये ऊपर क्यों उठ रहा था? ये भी हमारा पेपर के ऊपर हमने हाई स्पीड विंड डाला, तो इससे क्या हो गया? एरिया हो गया वो। You see that? तो ये अंडरलाइन कर दो, ये इज द मेन पॉइंट बेटा, और इसको लिख लेना कॉपी में। Increased wind speed is indeed accompanied by a reduced air pressure. जहाँ कहीं भी हाई स्पीड विंड ब्लो होती है वहां पर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया। यस बेटा, है ना? गुड। तो ये मैं कहना चाह रहा था, अगली बार मैं पढ़ाऊंगा एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। मैंने एक्टिविटी बताई थी, कई लोगों ने मुझे बताया भी, और करो बेटा। कम से कम पिक्चर तो खींच के भेजो एक्टिविटी का, पिक्चर खींच के भेजो। जो लोग वीडियो बना सकते हैं, छोटा वीडियो बनाओ और भेजो मुझे। आज हमें 2 लोगों ने भेजा, आई एम वेरी हैप्पी, ऋषिका एंड शुभ्रा, इन दोनों ने वीडियो हमें भेजा था बेटा। अपना ही बनाओ बेटा, कोई जरूरत नहीं लिखने उखने की, उसमें बोलते रहो, बोलो और जो कर रहे हो उसको एक्सप्लेन करते रहो, और बनाओ बेटा छोटा सा वीडियो एंड सेंड मी ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप, है ना? नाउ बेटा एक और मैं कहना चाह रहा था, एक और एक्टिविटी कर सकते हो। देखो ध्यान से, अगर चाहते हो तो मैं बताऊं, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। नहीं बेटा, मेरा नेक्स्ट पीरियड में हमारा है ना, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा बेटा, है ना? सो सॉरी, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा अगला एक्टिविटी इसी पर, रिड्यूस एयर प्रेशर वाला जो है ना। तो ये 2 बातें याद हो गई आपको,
Wind. Yes, sir. Moving air is called wind. Number one, air exerts pressure. Second thing, and third one, high speed wind is accompanied by reduced air pressure. Okay, so I'm stopping presenting. Let me take your attendance. I've taken. Right now, we'll chant Shanti Path. है ना बेटा? Shanti, Shanti, Shanti. Sai Ram. Now Sai you can Ram leave. sir, thank you sir. Sir, bye, Bye sir. sir.